یہ بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی. بات پیچھے سے یاد کریں, میں نے آپ کو بتایا تھا وہ لوگ نشانیاں چاہتے تھے نا, اور بہت زیادہ کہتے تھے کہ ہمیں نشانی دکھائیں, آپ نشانی دکھائیں. کوئی نشانی کا مطلب کیا, یعنی کوئی معجزہ دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر اے نبی آپ کو اتنا ہی ہے نا کہ آپ نے نشانی دکھانی, ہم نے تو نہیں نشانی دکھانی, تو آپ ایسا کریں, آپ ہی آسمان پہ سیڑھی لگا لیں یا زمین میں کوئی سرنگ نکال کے چلے جائیں اور ان کو کوئی معجزہ دکھا دیں, لیکن ہم نے نہیں دکھانا. اب وہ لوگ بھی نا, جب سے دیکھیں ایک بندہ ہوتا ہے نا جس میں تنگ کرنا ہوتا ہے, ضد کرنی ہوتی ہے, ماننا ہوتا نہیں, ان کو بھی پتا چل گیا تھا کہ ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس پہ یہ لاجواب ہو جاتے ہیں. وہ بھی اسی چیز کو لے کے بیٹھ گئے. اتنے ہی رسول ہیں تو کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ معجزہ دکھانا تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں آپ کے اوپر کوئی آیت اترتی, کوئی نشانی اترتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ معجزہ نہیں دکھا سکتا. بے شک ان کو کہہ دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ کہ کوئی نشانی دکھا دے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ دکھا نہیں سکتا, لیکن ان میں سے اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے. کیا پتہ نہیں ہے, کیا علم نہیں ہے کہ اگر اللہ نے دکھا دیا نا معجزہ تو پھر تمہاری خیریت نہیں رہی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معجزہ آنے کے بعد اللہ کی سنت کیا ہے, کہ معجزہ آنے کے بعد اگر کوئی ایمان نہیں لے آتا تو اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے, ان لوگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے, صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. یہ بات نہیں اللہ دکھا نہیں سکتا. بات یہ کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی حکمتیں کیا ہیں. وہ تمہارا ہی بھلا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے تمہیں ٹائم دے, مہلت دے. کوئی جانداروں میں سے کوئی زمین پہ ایسا نہیں ہے, اور نہ ہی پرندوں میں سے جو اڑتے ہیں اپنے دو پروں کے ساتھ, مگر یہ سب امتیں ہیں تمہارے جیسی, سب نیشنز ہیں, پورے پورے گروہ ہیں, اسپیشیز ہیں, ان کے بھی پورے عالم ہیں. مثلا چونٹیوں کا عالم الگ, شیروں کا عالم الگ, گیدڑوں کا الگ, اور مکھیوں کا الگ, سب کا ایک ایک عالم ہے. آپ دیکھیں پرندوں کے بھی, ایک پرندے کی کتنی طرح کی قسمیں ہیں, کتنے طرح کے. پرندہ کہہ دینا یہ تو ایک لفظ ہے, لیکن پرندوں میں بھی کتنی طرح کے پرندے ہیں, جیسے مچھلیوں میں کتنی طرح کی مچھلی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کا ایک پورا عالم ہے. کیا یہ تمہارے لیے نشانی نہیں ہے؟ تم یہ اس کو نہیں دیکھتے؟ دیکھنا چاہو تو انہی میں اللہ کو تلاش کر لو. ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو اپنے ارد گرد, یہ نشانیاں تو ہر طرف پھیلی ہیں. ہوا میں اڑنے والے پرندے کو دیکھ کے تمہیں اللہ نہیں یاد آتا؟ میں کیوں نہیں اڑ سکتی, چونٹی کیوں نہیں اڑ سکتی, شیر کیوں نہیں اڑ سکتا؟ یہ پرندہ اڑ رہا ہے, تمہیں اس میں نہیں اللہ کی نشانی نظر آتی؟ نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی بھی, کسی چیز کی کمی نہیں کی ہم نے کتاب میں. کون سی کتاب میں؟ قرآن. ٹھیک ہے, قرآن میں اللہ نے دین کی ساری باتیں بتا دی. ظاہر ہے اگر ہم کہیں من شیء کسی چیز کی بھی نہیں کمی کی تو ہم سوچ سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر تو سارے علوم تو نہیں ہیں. اس میں مثلا 1+1 2 ہوتا ہے, یہ تو نہیں لکھا ہوا اس میں. اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ ہیومن باڈی میں کتنی آرٹریز وین ہے, یہ نہیں لکھی ہوئی, بہت ساری چیزیں نہیں لکھی ہوئی. تو یہاں پہ لکھا ہوا من شیء, ان کسی چیز کو بھی نہیں ہم نے چھوڑا, ہر چیز کو ہی لکھ دیا. تو یہ کیسے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ دنیا جہان کے علوم اس میں لکھ دیا, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دین کے, یعنی یہ تو ایک دین کی کتاب ہے نا, اللہ کی آیات ہیں. انسان کو اس دنیا میں دین کے پر چلنے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس میں درج کر دی گئی. کوئی انسان آپ کو کہتا ہے کہ نہیں نماز کا طریقہ تو اس کے اندر نہیں لکھا ہوا, تو وہ کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ سنت سے بتا دیا گیا. اور سنت کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی تو کہا گیا قرآن میں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی. تو رسول کی اطاعت بھی کیا ہے؟ وہ بھی قرآن میں ہی تو درج ہے. انڈائریکٹلی جو رسول سے سیکھتے ہیں وہ اس کا بھی حکم قرآن میں ہی ہے. تو کوئی کمی نہیں کی. جس چیز کی بھی انسان کو ضرورت تھی اپنے دین کے کام چلانے کے لیے, شریعت پہ عمل کرنے کے لیے, شریعت جو ہے, لاز جو ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دے دی ہے. دوسرا معنی کتاب کا ہے لوح محفوظ. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں لکھا ہے, یعنی چرنے چگنے والے جانور, اڑنے والے جانور, ہر قسم کے, ہر ایک کی امت کے بارے میں, جنات ہیں, انسان ہیں, پرند چرند, مچھلیاں, سب وہ بھی
तो अमसालुकुम तुम्हारी तरह की मखलूक है, तुम्हारे जैसे ही है, वो भी खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तुम्हारे जैसे ही। उन सब का इल्म अल्लाह ताला ने उस किताब में लिखा हुआ जो उसके पास है। ना वो उनका रिस्क भूलता है, ना उनकी किसी जरूरत को भूलता है, ना उनकी किसी बात जो वो बात करते हैं अल्लाह से, ना उनकी किसी पुकार को वो सुनने से आजिज है। एक चूंटी बोल रही है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज आ रही है और एक चींटी बोल रही है, अल्लाह ताला वो भी सुन लेता है और सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं अल्लाह ताला कि ये कह रही है। हुदहुद है, उसको भी इतना पता है कि एक मलका है जो शिरक कर रही है, हुदहुद आके बता रहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में। तो यानी इनकी भी जो सारी चीजें हैं, सारी बातें हैं, ये भी एक ऐसी यानी मखलूकात हैं, ये भी जो तुम्हारे जैसे ही हैं, मगर अल्लाह ने इनका भी अल्लाह ताला ने इल्म, चाहे वो खुशकी में है, तरी में है, हर जानदार की तदबीर, उसको रिस्क देना, उसकी हिफाजत करना, ये सब अल्लाह ताला के इल्म में है और उसकी किताब में लिखा हुआ है। इकट्ठे किए जाएंगे कौन? सब के सब जितने भी हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जितनी उम्मतें भी हैं ना, चाहे जानवर हैं, चाहे परिंदे हैं, सब अल्लाह ताला के सामने जमा होंगे। वहशी जानवरों को भी इकट्ठा किया जाएगा, वहूश को भी इकट्ठा किया जाएगा, यानी कोई ऐसा नहीं रहेगा कि जिसको अल्लाह के इस दरबार में हाजिरी ना हो। क्या आप सोच सकते कि उस दिन जब हम खड़े होंगे ना, तो ये जानवर भी खड़े होंगे, अल्लाह इनको भी जिंदा करेगा। यहाँ तक कि कहा जाता है कि बूढ़ा बिल्कुल जो हो चुका था उसको भी अल्लाह ने जिंदा करना है, और वो बच्चा जो मसलन पैदा होते ही मर गया उसको भी अल्लाह जिंदा कर देगा उस दिन। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, इब्ने अबी हातिम में है, दुरुल मंसूर में भी है ये रिवायत, कि जब जानवरों को खड़ा किया जाएगा तो इसका मतलब है कि हर चीज को खड़ा किया जाएगा, हत्ता के मक्खी को भी जिंदा किया जाएगा, यानी मक्खियां भी जितनी वो भी सारी जिंदा होंगी और उनका भी हिसाब किताब होगा। कैसे हिसाब किताब होगा? जैसे मुस्नद अहमद में है कि दो बकरियों को आपस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ते हुए देखा, तो हज़रत अबू ज़र से पूछा कि जानते ही क्यों लड़ रही हैं? जवाब दिया कि मुझे क्या पता। फरमाया लेकिन अल्लाह ताला जानता है और इनके दरमियान वो फैसला करेगा कि ये क्यों लड़ रही थी। बेसींग बकरी कयामत के दिन सींग वाली बकरी से अपना बदला लेगी। इससे अंदाजा कर सकते हैं कि मखलूकात का एक दूसरे के ऊपर जो हक है, तो मखलूक एक दूसरे से अपना हक लेगी, अल्लाह ताला दिलवाएगा ये हक। ये नहीं है कि उनके लिए कोई जन्नत या जहन्नुम है, ऐसा नहीं है, मगर उन्होंने उनमें से किसी ने अगर दुनिया में दूसरी पे जुल्म किया था ना, तो उसका बदला अल्लाह दिलवाएगा, इसलिए कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा अदल करने वाला है। वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, ना हक माना और आगे बढ़ के हक को रिजेक्ट भी किया, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधेरों में हैं। सुमन बुकमुन अमियुन नहीं कहा यहाँ पे, क्योंकि सुमन बहरे तो हो गए, अब वो ना सुन सकते हैं ना वो बोल सकते हैं, और अंधेरे में है, तो अंधेरे में तो इंसान को कुछ नजर नहीं आता ना, तो अंधे तो हो ही गए। अल्लाह ने तो दी उनको रोशनी, मगर वो अंधेरों में टकरे मारते फिर रहे हैं। जो इंसान सुने ही ना कोई बात, हक की बात को सुनना ही नहीं चाहता, ऐसे हो गया जैसे बहरा। जो इंसान हक की बात बोले ही नहीं, ना हक बोलता जा रहा है, अंधेरों में भी है, भला वो कहाँ से हिदायत पाएगा? इसीलिए मयशाअल्लाहु युदलिलहु, जिसको अल्लाह चाहता है उसको भटका देता है, वो मयशा यजअलहु अला सिरातिन मुस्तकीम, और जिसको अल्लाह चाहता है उसको सीधे रास्ते की सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे देता है। जब खुद इंसान अल्लाह की आयतों को झुठलाता है, जब खुद इंसान बहरा, गूंगा और अंधेरों में रहना चाहता है, तो फिर अल्लाह भी रास्ता नहीं दिखाता। देखें, अल्लाह ने दोनों रास्ते हमारे सामने रख दिए, भलाई का भी बुराई का भी, उनकी तमीज भी बता दी। जब खुद ही कोई इंसान भटकना चाहे तो अल्लाह ताला जिस तरफ आप जाना चाहते ना, अल्लाह वो रास्ता आपके लिए खोल देता है। आप खुद ही अल्लाह की तरफ नहीं आना चाहते, खुद सिराते मुस्तकीम की तरफ नहीं आना चाहते, अल्लाह ताला जबरदस्ती नहीं लेकर आएगा। आप बुराई के रास्ते पे चलना चाहते हैं, अल्लाह उसी का रास्ता खोल देगा। आप सिराते मुस्तकीम पे चलना चाहते हैं, अल्लाह ताला, आप कोशिश करते हैं, अपना आपकी तलब भी है, अल्लाह ताला वही रास्ता खोल देगा। कुल कह दीजिए, अराअयतकुम, क्या देखा तुमने? तुमको खुद को देखा? जरा खुद पे गौर करो, तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब आ जाए या आ जाए तुम्हारे पास कयामत। और मैंने उस दिन आपको बताया था, साआ का माना बिल्कुल बेशक कयामत ही है,
لیکن اب आप कहें क़यामत तो बड़ी दूर है, वो तो अभी नहीं आ रही, लेकिन अगर मौत आज आ जाती है तो मेरी तो क़यामत आज ही शुरू हो गई ना। तो यानी बाकी लोगों के लिए मौत की घड़ी हो गई, या तो अगर हम ये सोच लें क़यामत या मौत की घड़ी, ठीक है, आ जाए तुम्हारे पास कोई अल्लाह का अजाब आ जाए या मौत आ जाए मसलन, अगैर अल्लाह तदऊन, क्या सिवाय अल्लाह के तुम पुकारोगे किसी को? इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे। अबू जहल का बेटा, तो इसने कहा मैं तो ईमान तो नहीं लेकर आया था, तो वो ये भाग गया था, क्योंकि इसके भी कत्ल का कहा गया था कि जहाँ मिले इसको कत्ल कर दिया जाए, तो ये भाग गया और ये ना जद्दा पहुंचा और वहां से इसने शिप में बैठ गया। जब शिप अंदर गया समंदर के, तो ऐसा तूफान आया कि ऐसे था कि शिप डूब जाएगा। शुरू में तो उन लोगों ने अपने बुतों को पुकारा, लेकिन जब देखा कि अब नहीं हमने बचना, अब बस हम गए, इतना जबरदस्त तूफान था, तो कहने लगे अब तो बस एक अल्लाह को ही पुकारो, अब कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा कि इकरमा, उन्होंने कहा कि एक अल्लाह को पुकारो, अब तुम्हें यही तो वो आदमी भी कहता है कि एक अल्लाह को पुकारो। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा अब कोई नहीं बचा सकता, वो एक अल्लाह ही बचा सकता, अब नहीं किसी की चल सकती। तब उन्होंने अपने दिल में अहद किया था, या अल्लाह अगर आज तूने मुझे बचा लिया ना, तो मैं जूं ही से उतरूंगा, मैं सीधा उनके पास जाऊंगा और ईमान ले आऊंगा। ना वो ईमान ले आए थे। आप जहाज में जा रहे हैं और एकदम टर्बुलेंस हो जाती है और एकदम ऐसा लगता है कि जहाज अब हमने बचना नहीं, अब गिरने लगा, ये नीचे को जा रहा, क्या मुंह से निकलेगा? कभी आपके साथ हुआ ऐसा कि कोई टर्बुलेंस वगैरह आ जाती है, एकदम जहाज हिलने लगता है, तो सारे क्या बोलने लगते हैं? या आप देखते होंगे खबरों वगैरह में वो बताते हैं वो जलजला आ गया फलां जगह पे, फिर लोग कलमा तैयबा पढ़ते हुए घरों से निकल आए। क्यों कलमा तैयबा का इस वक्त उनको क्या याद आ गया? उस वक्त क्यों नहीं याद आया फरीद गलशक्कर और गौसे आजम और या अली मदद, और ये क्यों नहीं याद आया उस वक्त उनको? पता चलता है कि इंसान तेरे अंदर है, तौहीद अल्लाह ने रख दी है, इसीलिए जब ऐसा स्ट्रेस का मोमेंट आता है तो वो अनकॉन्शियसली इंसान कहता है या अल्लाह, जैसे हम कहते हैं हाय अल्लाह, एकदम कोई बात होती तो हाय अल्लाह कहते हैं। वो अल्लाह को क्यों पुकारते हो? इसलिए कि वो तुम्हारे अंदर है। अगर वाकई तुम सच्चे हो ना, इन कुन तुम सादिक, अगर तुम वाकई सच्चे हो, क्या बताओ अल्लाह के सिवा तुम किसी और को पुकारते? अगर तुम वाकई सच्चे हो कि ये तुम्हारे माबूद हैं, ये तुम्हारे इलाह हैं, ये कुछ करके देते हैं, ये कुछ कर सकते हैं, इनके हाथ में कोई पावर है, उनको क्यों नहीं पुकारते? वो खोल देता है जो तुम पुकारते हो तरफ उसके, अगर वो चाहे मुसीबत के लिए तुम पुकारते हो उसको, वो उसको खोल देता है और उस मुसीबत को दूर कर देता है। यानी खोलने का मतलब क्या? यानी दूर कर देता है उस मुसीबत को। जो शिर्क करता है ना, अल्लाह चाहे इंशा, अगर वो चाहता है, अगर उसकी भी मुसीबत अल्लाह ही दूर करता है। ठीक है, हम सोचते हैं ना कि मैं तो इतनी गुनाहगार हूँ, मेरी अल्लाह कहाँ सुनेगा, आप मेरे लिए दुआ करें। नहीं, अल्लाह मुशरिक की भी दुआ अल्लाह ही सुनता है। और तुम भूल जाते हो जिनको तुम शरीक ठहराते हो, तुम लात उज़्ज़ा इन सब को भूल जाते हो।